Topper Squad. So today we will do the lecture 3 of the chapter 3 demand. So success targeted 2026-27 Theory of Demand Masterclass by Mitisha Gulati Topper Squad. Comprehensive lecture, lecture 1, 2, we will do the recap, and then today's lecture, that is lecture 3, the complete recap after that. So we will complete this chapter, I think so, by tomorrow. So let's start. Without wasting a single minute. So just go. Let's go. Now recap. Lecture 1. नाउ आई हैव टोल्ड यू, क्या मैंने आपको बताया था कि लेक्चर 1 में आपको मैंने बताया था कि आपके पॉकेट में है 10 रुपये और आपका सपना क्या है, आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। अब आप क्या कर रहे हो, 10 रुपये है और डिज़ायर आपका बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिज़ायर। अब देखो, मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई थी और मैंने बोला था 4 चीज़ें याद रखना। क्या? पहली क्या है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। डिमांड इज द क्वांटिटी बाय विच demand is the quantity of goods and services through which consumer is willing। देखो, मैं आपको 4 चीज़ें पहले बता दी। willing to buy, ability to purchase, फिर at each level of price, मतलब at various level of price during a particular period of time। अब इसको जोड़ के हम बनाते हैं डिमांड की डेफिनेशन। तो हम कैसे बनाएंगे? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which consumer is willing and able to buy at various level of price during a particular period of time। So this is a flow concept, okay? Now इसमें क्या लिखा है? डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंग टू स्पेंड एट अ प्राइस एंड टाइम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, पर डे, पर वीक, नॉट अ स्टॉक। स्टॉक मतलब अभी, और मतलब फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब कोर फैक्टर्स अगर मैं आपको बताऊँ, हमने देखा था क्या देखा था? इंडिविजुअल डिमांड, 2 टाइप्स ऑफ डिमांड्स होती है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड और एक तो मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड की अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर of goods and services by which a consumer is willing, able to purchase at various level of price during a given period of time. Now, the factors of the individual demand. What are the factors of the individual demand? See, first, what are the factors of individual demand? First, price of the given commodity. Second, price of related goods, that is substitute goods and price of related goods में substitute goods and complementary goods. So substitute goods are those goods which are used in place of one another to satisfy a particular work. Then complementary goods are those goods which are used together, like car and petrol. If petrol prices rises, so the demand of the car will be decreased. Okay. Now, third we have studied income of the consumer. Income of the consumer में हमने पढ़ा normal goods and inferior goods. Normal goods में हमने देखा if income is increased, we will increase the demand of normal goods. If the income is increased, we will decrease the demand of inferior goods. If the income is decreased, we will decrease the demand of normal goods. Okay, so these 3 things. Now for taste and preferences. No taste and preferences, so there is no demand. ठीक है, if you have taste means if you went to a restaurant and there you have eaten something
and you liked it so much, so your taste is rising upward, and your demand will be means तुम उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है. सो दीज आर फोर थिंग्स. एंड फिफ्थ, द एक्सपेक्टेशन प्राइस इन द फ्यूचर, कि अगर प्राइस फ्यूचर में कम हो रही है तो आप आज की डिमांड कम कर दोगे, आज इतनी डिमांड नहीं रखोगे. अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ रही है तो आप उसकी आज डिमांड बढ़ा दो. अंडरस्टूड. ना वी हैव स्टडीड मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड में हमने क्या पढ़ा, अब मैं डेफिनेशन बोलती हूँ. मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज by which all consumers in the market is willing, able to purchase at various level of price during a given period of time. तो इसमें क्या बोला? all consumers. उसमें सिंगल कंज्यूमर मतलब अ कंज्यूमर, इसमें ऑल कंज्यूमर. हम अगर मैं आपको इसका वो बताऊँ फैक्टर्स ऑफ मार्केट डिमांड, तो वो पाँच जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़े और ये 3, तो टोटल 8 फैक्टर्स हैं किसमें? मार्केट डिमांड में. ये 3 कौन कौन से? पहला पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन. दूसरा सीजन एंड वेदर. तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो टोटल 8 मार्केट डिमांड के फैक्टर्स है. टोटल 5 जो है वो किसके फैक्टर्स है? इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. ओके, so this we have done. Now I forgot it tomorrow that I have to do this individual demand function too. I forgot it, so now I had brought for you. Now see, individual demand function, the functional relationship. So individual demand function क्या बोलता है? The functional relationship between quantity demanded for a commodity and the factors influencing इंडिविजुअल डिमांड. जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड को, ठीक है. तो पहला ये शायद आई थिंक सो दिख रहा होगा, अब दिखेगा, ठीक है, अब दिखेगा. ओके, नाउ यू कैन सी प्रॉपर्ली आई गेस. या ठीक है. नाउ सो क्या लिखा है इसमें लिखा है dx, ठीक है, is equals to f, means demand of the commodity, then f, and then first is price of the given commodity. So we will represent it as px, the price of the commodity, given commodity, the price of x, then prices of related goods, then PR, prices of related goods. Second, third, income of the consumer. अब income of the consumer is denoted by Y. Why? Because individual और international is denoted by I. So हमने confusion ना हो, जिसलिए economics में इनकम को Y से डिनोट किया गया. तो याद रखना Y मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है. देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस T, and then F मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. डन. सो दिस द फैक्टर्स ऑफ द these are the factors of the individual demand plus this is the function. Px मतलब price of given x commodity, price of related goods. Then Y means income of the consumer, taste and preferences, and future expectation. Understood? So the functional relationship between quality बोल दिया. The functional relationship between quantity demanded for a commodity and the factors influencing the individual demand. Understand properly? Okay. Now we will move on to market demand. So the market demand. Now market demand.
I will change the color to grey. No, yeah. Now, dx is equals to means demand f. So we will write that 5 things here. Means price of commodity X, price of commodity X, price of related goods, price of related goods, price of related goods, then what is after that? Then income of the consumer, then taste and preferences, then future expectations, then this market demand. क्या है 3 एक्स्ट्रा चीज़ें? पॉपुलेशन, तो मैंने सिर्फ पॉपुलेशन ये ओ है, ठीक है. देन कॉमा, देन season and weather, okay. Then distribution of income. So these are the factors of individual demand, and these are the functions, the individual demand functions. How individual demand functions. The functional relationship between total market demand and the factors influencing it. जैसे हमने उसमें देखा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने देखा था, क्या देखा था इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity and the factors affecting influencing individual demand. Then in market demand क्या पढ़ा हमने? The functional relationship between the total market demand and the factors affecting it. Okay. Now we will do the recap of the lecture 2. See now. So yeah. Now, recap lecture 2. So the market demand schedule is this. Now हमने देखा था कल कि मैं और मेरी दोस्त, ठीक है, मैं और मेरी दोस्त 10 रुपये का जब वो सामान था तब मैं 50 यूनिट्स लेती थी, मेरी दोस्त 60 यूनिट्स लेती थी. जब 20 बढ़ गया प्राइस तो मैंने 40 यूनिट्स शुरू कर दिया और इसने 50 यूनिट्स लेना शुरू कर दिया. मीन्स मार्केट डिमांड जब 10 रुपये थी तो मार्केट डिमांड थी 110, और जब 20 रुपये हुई तो मार्केट डिमांड थी 90 रुपीज़. जब 30 रुपीज़ हुई तो मैंने 30 यूनिट्स लेना शुरू कर दिया और उसने 40 यूनिट्स लेना शुरू कर दिया. तो मार्केट डिमांड गिरती गई, मतलब 70 पे आ गई, और सो ऑन जो हमने पढ़ा था, ठीक है. तो जो अब देखो, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसमें क्या होता है, हम ऐसे प्लस करते हैं. कैसे प्लस करते हैं हम? अच्छा, हम ऐसे प्लस करते हैं, ऐसे हम प्लस नहीं करते, हम कैसे प्लस करते हैं? हम ऐसे प्लस करते हैं, ऐसे करते हैं. तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन. याद है, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल समेशन, याद है ना. मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय, देखो, मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग दी, मीन्स मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड. कैसे ऑब्टेन्ड होती है मार्केट डिमांड? सो मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड बाय आस्किंग, मार्केट डिमांड इज क्या बोलूँ, हाँ, market demand is obtained by adding all individual quantities demanded. जितनी भी इंडिविजुअल क्वांटिटी डिमांडेड है उनको सबको प्लस कर दो, मार्केट डिमांड आ जाएगी. ऑफ बाय ऑल कंज्यूमर्स ऑफ अ गिवन प्राइस लेवल से अब चेक कर सकते हो. मार्केट डिमांड निकालना है तो मार्केट डिमांड इज ऑब्टेन्ड थ्रू by adding individual quantity demanded by all consumers as at each level of price. ठीक है, understood? Now
द डिमांड कर्व जो मैंने आपको बताया था, द डिमांड कर्व आपको पता ही होगा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। नेगेटिव स्लोप कब होता है? स्लोप मूव डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन मतलब जब प्राइस राइज और डिमांड फॉल्स, तो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, so I think so it's over. Something else also we have done law of demand too. क्या पढ़ा था हमने law of demand में? Law of demand states that law of demand states that the law of demand refers to the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant, ceteris paribus. It is also known as first law of purchase. Okay. Now we have studied the assumptions. Ki taste and preferences will be same. Income of the consumer will be constant. और क्या बोला था हमने? फिर देखा था, हाँ, वो तो है, ठीक है। फिर no expectations of price in future, ठीक है। Then we have studied कि no change of season and weather. फिर हमने नहीं, ये नहीं था, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और क्या था? यही था, है ना, यही था। फिर हमने देखा, हाँ, नो change in price of related goods means related goods constant, right? Price of related goods is constant. Now seasonal weather भी ले सकते हैं। और फिर मैंने इसके assumptions बताए थे। assumptions, law of DMU, substitute effect, income effect, new consumers, then different uses। तो ये 5 assumptions है, ठीक है। अब exceptions पढ़ते हैं, part 1, ठीक है। तो Veblen good, status symbol goods like demands और luxury cars demand, ठीक है। तो Veblen goods क्या होता है? ये status symbol goods like demands और luxury cars demand increase as price rises because they signal prestige। मतलब कि देखो, Veblen goods वो goods होते हैं जो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि प्राइस बढ़ भी गई तो डिमांड भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप बेसिक चीज़ें, दूध, सब्जियां, ये सारी जो है बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, बेसिक चीज़ ही है, सॉरी चीज़ ही बोल रही, बेसिक चीज़ें। तो क्या जब इनकी प्राइस बढ़ेगी आप इनका डिमांड भी कम कर दोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रोटी, चावल और इन सब की प्राइस बढ़ गई, तो क्या आप इन सब की जो रोटी, चावल और ये सब, इनकी प्राइस बढ़ गई तो क्या आप इनको खरीदना कम कर दोगे? नहीं, आप इनकी डिमांड बढ़ाओ। और अगर प्राइस कम भी हो गए तब इसकी डिमांड के प्राइस कम हो गए, रोटी, दाल, मतलब व्हीट और इन सब के, तब क्या करोगे? प्राइस, डिमांड भी कम कर दो। क्यों? डिमांड क्यों कम करोगे? क्यों? क्योंकि फिर आप ये सब नहीं खाओगे, फिर आप पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता ये सब खाओगे। क्यों? क्योंकि व्हीट और इन सब की प्राइस कम हो गई है, तो ये क्यों खाए? प्राइस कम हो गई, हम और कुछ भी खा सकते हैं, हम 100 रुपये से और कुछ और ले सकते हैं। ये व्हीट और इन सब से मतलब इससे ये जो मन कर रहा है वो लेंगे, पास्ता लेंगे, पिज़्ज़ा लेंगे, बर्गर लेंगे, पेस्ट्री लेंगे, जो भी लेना लेंगे। अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेस्टीज है। देखो, प्राइस कम हो गई तो हम क्या लेंगे? अब हम सोचेंगे यार प्राइस तो कम हो गई, अब पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। अगर प्राइस बढ़ी तो तुम डिमांड भी बनाओगे। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये फॉलो ही नहीं कर रहा। ये बोल रहा है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है। अंडरस्टूड? ना, ये Veblen goods
पहला याद रखना विबलिन गुड्स, पहला विबलिन गुड्स। एक्सेप्शन पार्ट 2, गिफिन पैराडॉक्स। Highly inferior goods like cheap staples, as their price rises, poor consumers stop buying luxury food, meat, and buy more of the staple bread, potato. Named after Sir Robert Giffin. अब क्या किया, जब रॉबर्ट गिफिन, वहाँ का खाना क्या है, वहाँ का खाना मीट, वाइन, ये सब है, और यहाँ का क्या है, रोटी, वीट, राइस और ब्रेड और ये सब है। वहाँ का खाना ब्रेड, ब्रेड, वाइन और मीट है वहाँ का खाना, जहाँ गिफिन गुड बिलोंग करते हैं, रॉबर्ट गिफिन बिलोंग करते हैं। तो अब क्या हुआ, जब ये लोग हाईली इंफीरियर गुड्स है, ये सारे हाईली इंफीरियर गुड्स है। चीप स्टेपल्स जैसे हाईली इंफीरियर गुड्स जैसे पूमा और उइमा। पूमा क्या है, नॉर्मल गुड्स है। उइमा क्या है, इंफीरियर गुड्स है, चीप गुड है। जब इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो अब इसने बोला एज पर प्राइस राइजेस पुअर का, जैसे ही प्राइस इस गुड्स की वीट, इन सब की प्राइस बढ़ेगी, जैसे ही इन सब की प्राइस बढ़ेगी वैसे ही क्या होगा, जैसे ही इन सब की प्राइस बढ़ेगी पुअर कंज्यूमर स्टॉप बाइंग लग्जरी फूड। अब बढ़ गई तो जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, गरीब लोग हैं, वो सब इनको अफोर्ड तो कर नहीं पाएंगे, प्राइस बढ़ गई। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो लग्जरी फूड जो वो खाते थे वो बंद कर वो क्या बाय करने लगेंगे, स्टेपल फूड जैसे ब्रेड, पोटैटोज और ये सब बाय करने लगेंगे। तो मतलब क्या है, प्राइस बढ़ी, डिमांड भी, प्राइस बढ़ गई और डिमांड भी बढ़ गई। तो प्राइस, अगर देखो प्राइस बढ़ी किसकी, इंफीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड भी इंफीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम क्या है, इनकम कम है पुअर कंज्यूमर्स के पास। तो प्राइस बढ़ी तो वो डिमांड भी बढ़ा देंगे, क्योंकि वो नेसेसिटी है ना, ये भी वो नेसेसिटी है, ठीक है। ये गुड्स हुज प्राइस राइजेस एज डिमांड, जैसे ही प्राइस राइज होती है डिमांड भी ऊपर चली राइज होती है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस एंड नेसेसिटी। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में पैनिक बाइंग, consumers buy more even of at high prices if they expect a future shortage. So मान लो जैसे हम कोविड-19 था तो उनको लगा कि कल मिले या ना मिले तो हम सारी बोरी भर के ले जाते हैं। तो भाई साहब, अगर आप उस समय डी-मार्ट गए होंगे या कहीं गए होंगे, लोग आटा इतना बड़ा, 2 आटे की बोरी, पास्ता, पिज़्ज़ा, मैगी, मतलब पिज़्ज़ा का बेस, मैगी, किताबें तो नहीं, मैगी और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि आज तो मिल रही है, कल मिले या ना मिले, है ना। तो हम इस जन्म में तो खा लेना, अगले जन्म का पता नहीं, इस जन्म में तो खा लेना। तो भाई सब भर गया, उन्होंने पता नहीं 20-30 पैकेट थी मैगी की, लाइक ओ माय गॉड, मतलब इतना तो था नहीं ना। हाँ, लोगों ने बोला था कि भाई लॉकडाउन लग गया, घर पे रहना है, खाओ। अब खा के ऐसे तो नहीं हो जाओ ना कि भाई और ही हो गए, फूल गए, ठीक है। तो वो ये सोच रहे, तो फियर ऑफ शॉर्टेज, आपको लग रहा है कि भाई शॉर्टेज हो रही है। कोविड-19 जब आया था तो क्या हुआ, यही हुआ था, सब पैनिक हो गए थे कि भाई ये सब ले लो, यहाँ से ब्रेड ले लो, जल्दी ले लो, अच्छा जल्दी ले लो। प्राइस बढ़ी पर डिमांड भी बढ़ गई, अरे जल्दी, पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाएगा, अच्छा ये ले लो, अच्छा ये भी ले लो, नहीं ये भी ले लो, 50 पैकेट ले लो मैगी के, पता नहीं कब बाहर निकलने का मौका मिले, कब मिले क्या मिले, सब ले लो। तो ये था फियर ऑफ शॉर्टेज। प्राइस अगर प्राइस बढ़ी हुई थी तो डिमांड भी लोगों ने बढ़ा दी, क्योंकि उनको लगा कि भाई शायद लॉकडाउन बहुत समय तक लग जाए, हमें खाने के लिए कुछ ना मिले, तो हम जल्दी सब ले लेते, ठीक है। तो वो पैनिक हो गए थे, ठीक है। फिर
इग्नोरेंस। तो हमने 3 चीज़ें क्या क्या पढ़ी? पहला वेबलिन गुड्स, गिफिन गुड्स, तीसरा फियर ऑफ शॉर्टेज। हम चौथा हम इग्नोरेंस पढ़ रहे हैं। इग्नोरेंस में देखो, मिथ, हाई प्राइस इक्वल टू हाई क्वालिटी, कंज्यूमर्स बाय मोर एक्सपेंसिव पोटैटोज, आलू ले लो थिंकिंग दे आर बेटर। अब देखो हुआ क्या कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं गई, मतलब मम्मी ने मेरे से बोला कि बेटा जा, बेटी जा और पोटैटो लेके आ। मैंने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आऊँगी। मैं गई रिलायंस, ठीक है, आराम से ऐसे स्टाइल मार के अच्छा कपड़े पहन के गई। अब मैंने बोला वेयर इज पोटैटो, तो उन्होंने बोला सर you will, sorry mom, you will go you will go and you will take a left, so there is potato. So अब okay so मुझे दिख नहीं रहा था कहाँ है, where is potato, दूसरे लड़के where is potato। तो फिर अब उसने फ्रिज जो जहाँ पे रखते हैं पोटैटो वहाँ वो देखा और उसने मुझे दिया पोटैटो। So how much rupee is this, how much kg? So उसने बोला कि 80 kg, 80 per kg, rupees 80 per kg। Okay, give it to me। मैं गई काउंटर में, मैंने देखा, मैंने लिया। अब क्या हो, बाहर वो मैं जैसे ही बाहर निकली, बाहर ठेला वाला खड़ा था, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू ले लो, आलू आलू ले लो, 20 रुपये किलो आलू ले लो, आलू 20 रुपये किलो, ऐसे बोलता है। मैंने बोला तुम 20 रुपये किलो आलू दे रहे हो? कि मुझे थोड़ी आइडिया था उसका, 20 रुपये किलो आलू। ए भगवान, मैंने अपना सर फोड़ दी। भाई अंदर गई तो मुझे रुपीज़ 80 पर केजी पे आलू मिल रहा था। बाहर आई, जैसे ही मैं जस्ट बाहर निकली हूँ, आलू ले लो, 20 रुपये किलो आलू ले लो। मतलब मैंने उसको इग्नोर मार के क्या, मैं सीधे सीधे चल गई अपने फैशन कि भाई हम तो इससे लेंगे, हम तो यहाँ से लेंगे। इग्नोरेंट, ठीक है। तो ये होता है इग्नोरेंस कि आपको पता नहीं है कि प्राइस चल क्या रहा है। अब डी मार्ट और इन सब में जाओगे तो प्राइस ज़्यादा ही होगी, ठीक है। जब आप ठेले वेले पे जाओगे तो प्राइस कम होती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ओह माय गॉड, ठीक है। तो पहले ये होना चाहिए कि सारी दुकानें में पूछ लो कि अच्छा इतने रुपये मार्केट प्राइस इतनी है, पहले मार्केट प्राइस देखो फिर आप लो। मैं तो इसलिए मैं इग्नोरेंस हो गया मेरे को, मैं उसको इग्नोर मार दिया, अपने आप को इग्नोर हो गया, ठीक है। अब नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 लोग गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, 3 लोग गाड़ी से जा रहे हैं, 3 लोग गाड़ी से गए, जा रहे हेलमेट भी नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, जा रहे। आगे से एक इतनी तेज उसमें ट्रक आता है और ये पुश अंदर घुस जाती है उसकी गाड़ी। फिर तो ठीक थे, उनको तो वैसे डर लगती। तीसरा जो था वो फुस, वही उसमें ऑन दी स्पॉट मरता नहीं है, ठीक है। तो फिर जल्दी क्या किया, जल्दी हॉस्पिटल लेके गए उसे। अब आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए, मतलब आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन चाहिए, यू वांट मेडिसिन, पर मेडिसिन की प्राइस बढ़ी हुई है। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़ी होती है तो डिमांड कम कर देता है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ाते हैं। तो बोलता है जल्दी से दवाई लेके आओ, बहुत अर्जेंट है, जाओ जल्दी लेके आओ, ये ब्लड लेके आओ, जाओ जल्दी लेके आओ। मैंने बोला इधर आओ डॉक्टर, इधर प्राइस बढ़ी हुई है। तो हम लॉ ऑफ डिमांड ये बोलते हैं कि प्राइस बढ़ी हुई है तो डिमांड कम होनी चाहिए, आप प्राइस कम कर दो तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँ। तो डॉक्टर बोलता है ये पागल है क्या, वो दूसरा दोस्त इधर बुला रहा है, इधर अच्छा
वो जो दोस्त पड़ा हुआ है बिस्तर पे इधर, यहाँ मेरी जान की पड़ गई और तू डिमांड, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड में घटा दूंगा। तो पागल है क्या दिमाग से? जा जल्दी लेके आ मेरे लिए खून की बोतल, जल्दी जा। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। क्यों? नेसेसिटी थी लाइफ, अगर वो लाइफ सेव करनी थी, मरण और जीवन पे बात आ गई थी, तो ऑब्वियसली बात है ना कि भाई आप मेडिसिन लेके आओगे, चाहे वो उसकी प्राइस बढ़ी हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे इंसान की जान 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 की बाजी लग रही है, तो वो उस पर ध्यान दोगे तुम, ना कि वो प्राइस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, ऐसे थोड़ी इस पर ध्यान दोगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें, 5 चीज़ें पढ़ ली। क्या क्या? 5 या 4। पहला, विबिलियन गुड्स, गिफिन गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस और नेसेसिटीज। 5 चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आता है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन समझ में आ जाए जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करे थे। ओके ना, अब आता है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। अब ये समझो, मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्ट ऑफ द कर्व। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, मैं आपको समझा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, सिर्फ इसका फ़र्क है। ये जो क्वांटिटी लिखी है ना, सिर्फ इसका फ़र्क है। ये क्वांटिटी सिर्फ बताती है प्राइस, मीन सिर्फ इसमें चेंज इन प्राइस हो रहा है। ये लिखा है चेंज इन प्राइस ओनली, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये चेंज इन डिमांड जो है, चेंज इन डिमांड, ये कीप प्राइस को कांस्टेंट रख रहा है, प्राइस को कांस्टेंट रख रहा है, प्राइस को कांस्टेंट रख रहा है। और चेंज इन अदर फैक्टर्स क्या हो रहा है? चेंज इन अदर फैक्टर्स, इसमें, हाँ, इसमें प्राइस को चेंज कर रहा है, इसमें चेंज इन अदर फैक्टर्स, सिर्फ ये डिफरेंट है, सिर्फ ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि ये क्वांटिटी का डिफरेंस है, ये क्वांटिटी, सिर्फ इस क्वांटिटी का डिफरेंस। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है मतलब प्राइस, उसकी सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। और जब चेंज इन डिमांड आ रहा है, सिर्फ चेंज इन डिमांड आ रहा है, क्वांटिटी नहीं आ रहा, चेंज इन डिमांड आ रहा है, तो मतलब प्राइस कांस्टेंट है एंड अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग। अंडरस्टूड? तो सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना पॉइंट है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है, समझे? तो देखो, बेसिस रीजन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों? चेंज इन प्राइस ओनली, और इसमें चेंज इन डिमांड में चेंज इन अदर फैक्टर्स, चेंज इन अदर फैक्टर्स। टाइप्स, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इसमें एक्सपेंशन, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, आगे समझाऊंगी, रुक जाओ। टाइप्स में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टाइप्स। इसमें क्या होता है? इसमें चेंज इन डिमांड में अब सिर्फ आप अदर फैक्टर्स को चेंज करो, तो इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, याद करो, शिफ्ट और रोटेशन, वो यहाँ रहा, इंक्रीज और डिक्रीज, लेफ्ट और राइट। अदर फैक्टर्स में ये अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन डिमांड में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव ऑन टू एक्सपेंशन इन डिमांड। तो एक्सपेंशन इन डिमांड क्या बोलता है? एक्सपेंशन इन डिमांड क्या बोलता है? तो राइज इन क्वांटिटी। अब देखो, मैं आपको ये दूंगी, आप खुद, मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, आप डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड की आप डेफिनेशन मुझे खुद बताओगे। देखो, डेफिनेशन इसमें लिखी नहीं है, थी मैं इसको बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो, ये दिख रहा है आपको, प्राइस 20 है तो 100 की डिमांड है, प्राइस 15 है तो 150 की डिमांड है। ठीक है, तो प्राइस कम हो गई तो हमने डिमांड बढ़ा दी। अब देखो,
इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये रहा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ। अब ये मान लो कितना है, ये मान लो ये है ये 20 है और ये 15 है, ठीक है, 20 है और 15 है, ठीक है। रुक जाओ मैं आपको इसमें ये सिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब इससे कंफ्यूज मत हो ना, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, ये और ये, ठीक है, ये और ये। अब क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा अब सुनो, मैं यही बना रही हूँ, ठीक है, ये और ये। अब क्या है यहाँ पे 20, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मानो यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 20, ठीक है। रुक जाओ मैं उसको थोड़ा, हाँ ये रहा 15 का आपका और ये रहा आपका 20, ठीक है। कलर चेंज करूँ ना, 15 पे 15 रुपये पे आपकी कितनी है 150 है, तो मतलब यहाँ पे 100 ले लेती हूँ और यहाँ पे ले लेती हूँ 150, ठीक है। तो मतलब 15 रुपीज़ पे आपकी 150, ठीक है, और 20 रुपये पे आपकी 100 रुपये की डिमांड थी, ठीक है। अब ये और ये डॉट्स दिख रही है, इनको ज्वाइन करो, इनको क्या करो, इनको ज्वाइन करो। अब इनको ज्वाइन किया ऐसे मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अरे भाई सीधी बन गया, ऐसे मैंने क्या किया, इनको इधर से इधर, ठीक है अब सही। तो मैंने इनको यहाँ पे अब ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, दिख रहा है, ये ज्वाइन दिख रहा है, ठीक है। अब ये ए है और ये बी है, ये कहाँ से आया, ये ए से बी पे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये ए से बी पे जा रहा है, मतलब कि जो प्राइस है वो कम हो रही है, प्राइस जो है वो कम हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है। तो अब देखो प्राइस कम हो रही है, ठीक है, प्राइस कम हो रही है तो हमने डिमांड भी ज़्यादा कर दिया, ये होता है ना, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा कर दिया। तो ये कैसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन डिमांड। अब इसकी डेफिनेशन आप मुझे खुद बताओगे, क्या बताओगे, देखो, एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू, एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज, ये जो राइज हुआ, राइज, ये डिमांड में राइज हुआ ना, तो राइज इन डिमांड, ये राइज इन डिमांड, तो expansion in demand refers to rise in quantity demanded due to, किसके कारण, due to fall in the price of, fall in the price of commodity, fall in the price of commodity, keeping other factor constant, keeping other factor constant, keeping other factor constant, understood, keeping other factor constant। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने, expansion in demand refers to rise in the demand of the rise in the quantity demanded due to fall in the price of the commodity, keeping other factor constant।
इसके अदर नेम क्या है वो मैं बताती हूँ। दूसरे नाम क्या है इनके? पहला क्या है? ये सेम कर्व है तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट along the same curve, डाउनवर्ड मूवमेंट सेम कर्व हो रहा है ना, तो सेम कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट along the same curve, डाउनवर्ड मूवमेंट along the same curve। दूसरा नाम बोलेंगे डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके, so this is done. Now next one, contraction in demand, contraction in demand, contraction in demand। now see इसमें क्या है, इसमें भी मैं बना ही देती हूँ, ठीक है। ये अब इसमें प्राइस बढ़ गई तो 20 प्राइस 25 हो गया, प्राइस बढ़ गई, ठीक है। ये 0, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। प्राइस बढ़ गई तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 नहीं, चलो यहाँ है 70 और यहाँ है 100, ठीक है। अब अब 20 की प्राइस पे डिमांड कितनी थी? 100। 25 की प्राइस पे डिमांड कितनी हो गई? 70, मीन्स डिमांड कम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे with another color that is purple, then we will join this, ठीक है। तुमने इसको ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ये वाला ए था, दिस वन वॉज ए एंड दिस वन वॉज बी। तो मतलब क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है। तो आप डेफिनेशन क्या होगी खुद बताओ। कॉन्ट्रैक्शन इन राइट, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड refers to, contraction in demand refers to fall in the quantity demanded, fall in the quantity demanded due to the rise in the price of the commodity, keeping other factor constant, keeping other factor constant। अब मैं आपको अदर्स नेम बताऊँ, आप ही बताओगे, पता है मुझे। अपवर्ड मूवमेंट, ये क्या हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट along the same curve, upward movement along the same curve, increase in quantity demand, sorry, नहीं रुक जाओ, कुछ गलत बोला, सॉरी, उसमें मैंने कुछ गलत बोला। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अदर नेम, एक्सपेंशन इन डिमांड में अदर नेम में मैंने इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला था, सॉरी, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोला था, जो कि है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस कम हो गई। यहाँ पे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन फ्रेम करना भी सीख गए, देख लो ना, देख लो। अब शिफ्ट्स हम बात कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल टुमारो वी विल डू द शिफ्ट्स। ओके, नाउ दिस इज द एमपी बोर्ड टॉपर्स टेस्ट, सो डू इट। If you want to take a screenshot, you can take it. So expected 2026-27 board pattern. So solve this in 35 minutes, and the MCQs, this fill in the blanks. Just give me the answers in the comment section so that I know that you are doing it. Okay. So yeah.
So the difference between a student and a topper is one extra hour is of focus. If you have done that one extra hour effort focus, then you are the topper. We are the topper. We will rank in the state board. Okay, we will do the ranking. Now, the difference between a student and a topper is one extra hour of focus. Success targeted 2026 state topper squad Nitisha Gulati. So, and now we'll take a leave and we will complete this chapter by tomorrow, I guess. So, bye everyone. Do this test that I have given you. So, bye everyone. Love you all. Bye bye.